its establishment in 2009, is a global network marketing company with a presence across the globe. Atomy's #1 goal of going beyond customer satisfaction to customer success continues to be its top priority to this day. Providing good quality products at reasonable prices, Atomy's competitiveness lies in the nature of distribution. The absolute quality and absolute price product philosophy that Atomy has practiced since its inception is included in all of its products, such as health functional foods, beauty, living, food, fashion, home appliances, and more. Atomy Hemohim surpassed £1.1 billion in cumulative sales, ranked #1 in domestic health functional food exports. Developed as part of a national project by the Korea Atomic Energy Research Institute, Hemohim holds 23 international patents and made history in 2023 by being the first product in Korea to offer dual health benefits, immunity boost, and fatigue relief. Absolute Cell Active Skincare, a flagship product, has surpassed £1.5 million in cumulative sales. It received the King Sejong Award from the Korean Intellectual Property Office, a first in the cosmetics industry, and was named a world-class product for next generation by the Ministry of Trade, Industry and Energy. Atomy prioritizes its customers, earning the Customer-Centered Management certification for 3 consecutive years, a rare industry feat. Since opening its US branch in 2010, Atomy has grown into a global hub, linking producers and consumers worldwide, through 27 branches in Asia, South America, Oceania and Europe. Atomy products have proven overwhelmingly popular in international markets, achieving the top export ranking for health functional foods and over-the-counter medications. Following the $300 million Export Tower Award, the company reached cumulative exports of $1.8 billion in 2024. After launching its EU branch, Atomy plans to expand globally, focusing on Africa, Central and South America and other emerging markets. Atomy's GSGS strategy, which stands for Global Sourcing, Global Sales, allows the supply of products that align with the absolute quality and absolute price philosophy through Atomy's global sales network. Atomy's success system, in which the company runs all seminars, allows any member to succeed, regardless of individual ability. This is the driving force behind Atomy's distinctive growth. Success seminars that bridge online and offline realms vividly communicate Atomy's vision to members worldwide, presenting a vision of global success that goes beyond time and space by merging business and culture. The ACTS project has been initiated to cultivate global leaders and empower active members around the world. Atomy continues to provide unwavering support for success, including the renovation of Songnisan Forest as a hub for the Atomy brand experience. To achieve absolute quality and absolute price, and to ensure commitment to quality from its partners, Atomy provides various support measures for partnering companies, such as cash payment within 1 week from delivery, interest-free operating fund loans, and joint quality management systems, among others. These create a culture of accompanied growth. Atomy is implementing various policies to ensure sustainable coexistence with the Earth. The company promotes resource recycling and environmental restoration through product renewals aimed at zero plastic initiatives, increasing the use of biodegradable plastics and eco-friendly materials, and introducing smart packaging solutions. Atomy's contributions surpass not only its industry and the distribution sector, but also stand at the top level nationally. Over the past 3 years, the company's donation percentage relative to revenue has been 30 times that of the distribution industry, ranking first among Korea's top 500 companies. As a result,
It has earned various government awards and certifications, including the Government Award for Sustainable Management, Good Donor Award, Family Friendly Company, and Great Place to Work Korea. Atomy's culture of sharing has expanded beyond national borders, with the company, members, partner companies, and executives actively engaging in social contribution activities worldwide. The company that holds true to its principles while creating a new distribution culture. The company expanding globally with the trust of people around the world. The company that dreams of customer success while moving beyond customer satisfaction. The company that cherishes the spirit. We are proud. Atomy. मैंने सोचा ना कि इस टाइम को यूटिलाइज किया जाए और आप सबको ना एक बार जो कंपनी का जो हमारा प्रोफाइल है उसको चलाया जाए, ताकि ये टाइम भी एग्जैक्टली यूटिलाइज हो जाएगा। और मैं फिर से बोलूँगा कि आपके जयप्रकाश सर मुझे co-host जैसा मैंने आपको ना co-host बना दिया। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, जितने भी हमारे मास्टर्स हैं प्लीज हैंड रेज करें, तो मैं उनको भी को-होस्ट बना दूंगा, अगर जो भी मास्टर्स हैं प्लीज। और दूसरा, मैं आपको फिर से 1 मिनट का और समय देता हूं, आप ना अपने टीम मेंबर्स को जरूर कनेक्ट कर लें, बुला लें, क्योंकि अगर आपका टीम मेंबर नहीं है ना लेफ्ट और राइट टीम से, तो अगर नए नहीं हैं, अगर अभी आपका टीम नहीं बना है, उनके अलावा जो लोग पुराने हैं उनका टीम है लेफ्ट और राइट से, तो प्लीज आप अपने टीम को बुला लें। फिर से हम 1 मिनट के अंदर इस सेशन को स्टार्ट कर लें। तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप अपने टीम मेंबर्स को कॉल करें और कॉल करके बुलाएं आज के सेशन के लिए। एक बार हम ना, जब तक हमारे टीम मेंबर्स आ रहे हैं, एक बार हम अपने प्रोफाइल को ना वापस से कनेक्ट करते हैं हिंदी में, ताकि जब तक हम प्रोफाइल भी देखेंगे, और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज आप अपने टीम मेंबर्स को कॉल करें, क्योंकि अगर आपका टीम मेंबर्स नहीं है ना इस प्लेटफॉर्म पे, तो फिर इसका बहुत बड़ा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने टीम मेंबर्स को कॉल करके बुलाएं और कनेक्ट कराएं। तब तक हम कोशिश करते हैं एक बार फिर से प्रोफाइल देखने का। Steadfast and kept the right principles. The company headed toward the world with the right principles. The company that grows with its customers and shares generously. We are Atomy. Atomy, which has been growing ever since its establishment in 2009, is a global network marketing company with a presence across the globe. Atomy's #1 goal of going beyond customer satisfaction to customer success continues to be its top priority to this day. Providing good quality products at reasonable prices, Atomy's competitiveness lies in the nature of distribution. The absolute quality and absolute price product philosophy that Atomy has practiced since its inception is included in all of its products, such as health functional foods, beauty, living, food, fashion, home appliances, and more. Atomy Hemohim surpassed £1.1 billion in cumulative sales, ranked #1 in domestic health functional food exports. Developed as part of a national project by the Korea Atomic Energy Research Institute, Hemohim holds 23 international patents and made history in 2023 by being the first product in Korea to offer dual health benefits, immunity boost, and fatigue relief. Absolute Cell Active Skincare, a flagship product, has surpassed
Just £1.5 million in cumulative sales. It received the King Sejong Award from the Korean Intellectual Property Office, a first in the cosmetics industry, and was named a world-class product for next generation by the Ministry of Trade, Industry and Energy. Atomy prioritizes its customers, earning the Customer-Centered Management certification for 3 consecutive years, a rare industry feat. Since opening its US branch in 2010, Atomy has grown into a global hub, linking producers and consumers worldwide. Through 27 branches in Asia, South America, Oceania and Europe. Atomy products have proven overwhelmingly popular in international markets, achieving the top export ranking for health functional foods and over-the-counter medications. Following the $300 million Export Tower Award, the company reached cumulative exports of $1.8 billion in 2024. After launching its EU branch, Atomy plans to expand globally, focusing on Africa, Central and South America and other emerging markets. Atomy's GSGS strategy, which stands for Global Sourcing, Global Sales, allows the supply of products that align with the absolute quality and absolute price philosophy through Atomy's global sales network. Atomy's success system, in which the company runs all seminars, allows any member to succeed. Regardless of individual ability, this is the driving force behind Atomy's distinctive growth. Success seminars that bridge online and offline realms vividly communicate Atomy's vision to members worldwide, presenting a vision of global success that goes beyond time and space by merging business and culture. The ACTS project has been initiated to cultivate global leaders and empower active members around the world. Atomy continues to provide unwavering support for success, including the renovation of Songnisan Forest as a hub for the Atomy brand experience. To achieve absolute quality and absolute price, and to ensure commitment to quality from its partners, Atomy provides various support measures for partnering companies, such as cash payment within 1 week from delivery, interest-free operating fund loans, and joint quality management systems, among others. These create a culture of accompanied growth. Atomy is implementing various policies to ensure sustainable coexistence with the Earth. The company promotes resource recycling and environmental restoration through product renewals aimed at zero plastic initiatives, increasing the use of biodegradable plastics and eco-friendly materials, and introducing smart packaging solutions. Atomy's contributions surpass not only its industry and the distribution sector, but also stand at the top level nationally. Over the past 3 years, the company's donation percentage relative to revenue has been 30 times that of the distribution industry, ranking first among Korea's top 500 companies. As a result, it has earned various government awards and certifications, including the Government Award for Sustainable Management, Good Donor Award, Family Friendly Company, and Great Place to Work Korea. Atomy's culture of sharing has expanded beyond national borders, with the company, members, partner company. हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। और जैसा कि सबको पता है, आज का जो सेशन होने वाला है वो टॉपिक सबको पता है 864। जिन लोगों ने भी आज से पहले कभी इसी तरह अटेंड नहीं किया है, ये सेशन हमारी कंपनी के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है, जो सिस्टम हमें ये बताता है कि हम इस बिजनेस में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो जो भी दिल से शिद्दत से चाहता है कि वो सक्सेसफुल हो, तो उसे 864 पसंद है तो भी, नहीं पसंद है तो भी फॉलो करना पड़ेगा। और उसको बताने के लिए उसका समय बताने वाले हैं आज के डेट में, वो 100% इसको फॉलो करते हैं। वो 864 को जब से उन्हें फॉलो करना शुरू किया, उनका सक्सेस ऑटोमेटिकली, मतलब जितना लोग उम्मीद करते हैं उससे बहुत ज़्यादा होना शुरू हुआ। तो जब वो खुद बताएंगे कि आपको ये चीज़ें कैसे करनी है, कैसे फॉलो करनी है, क्या क्या चीज़ें इसमें प्रॉब्लम आएगी, क्या क्या चीज़ें आपको टेक केयर करनी है, तो आपको और ज़्यादा विश्वास होगा कि खुद ये काम कर रहे हैं।
तो आप सबकी जोरदार तालियों से बुलाना चाहूंगा मैं हमारे डायमंड मास्टर मिस्टर राजेश झा सर को। सर ओवर टू यू। थैंक यू जय सर, थैंक यू। मैं आपको बताऊं, रियली जय सर ने बोला, मैं 864 का ना हार्ड कोर फॉलोअर हूं। मुझे कोई भी कुछ भी पूछता है ना कि कैसे पॉसिबल होगा, उसका एक ही मेरे पास आंसर है, फॉलो करें सिस्टम को। और मैं आपको बताऊं, सबसे पहला मैं चैट बॉक्स पे लिखना चाहता हूं कि 864 को 864 क्यों बोला जाता है। अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज लिखें चैट बॉक्स पे, 864 ही क्यों बोला जाता है। और मैंने जब लास्ट टाइम 864 का सॉल्यूशन बताया था ना, तो इसका क्वेश्चन का आंसर दिया था। तो देखो चैट बॉक्स पे किसका आंसर आता है। 864 को हम बेसिकली 864 क्यों बोलते हैं, चलिए फिर से आज बताता हूं, क्योंकि अभी तक चैट बॉक्स पे ना आंसर नहीं आया। आप ना अपने मोबाइल को उठा के कैलकुलेट कीजिए, 24 आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 24 आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई किया तो आपका जो पूरे दिन का जो टाइम है ना, उसको आपने मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। और जब मिनट्स को फिर से आपने 60 से मल्टीप्लाई किया तो सेकेंड्स में कन्वर्ट होगा, तो वो 86400 हो जाएगा। यानी 86400 का शॉर्ट फॉर्म है 864। यानी आपके बिजनेस का 24/7 24 घंटा कैसे चलेगा, वो पूरा सिस्टम अभी मैं बताने जा रहा हूं 864 में। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जब भी आपका बिजनेस आपके मन मुताबिक ना चले ना, तो क्या होता था, सचिन तेंदुलकर का ना जब परफॉर्मेंस डिप करता था ना, तो वो जाके अपने कोच से पूछते थे कि सर करें क्या, समझ में नहीं आ रहा है, परफॉर्मेंस डिप हो रहा है। तो वो हमेशा बोलते थे कुछ भी और सोचने की जरूरत नहीं है, बैक टू बेसिक हो जाओ। तो ये हम लोगों के लिए, हम डायरेक्ट सेलिंग वालों के लिए ये बैक टू बेसिक है। आपको एक चीज पता है, कई बार हमें ये भ्रम लगता है कि यार काश हमारे लेफ्ट में ये पर्टिकुलर बंदा आ जाए, राइट में ये पर्टिकुलर बंदा आ जाए, तो मेरा बिजनेस ना ऑटो मोड पे चलेगा। ये सबसे बड़ा भ्रम है इस बिजनेस का। ये बिजनेस ऑटो मोड पे तभी चलेगा जब आप बैक टू बेसिक को फॉलो करोगे। अगर आप बैक टू बेसिक को फॉलो नहीं करोगे, अगर आप 864 को फॉलो नहीं करोगे ना, तो ये बिजनेस नहीं चलेगा नॉर्मल। तो आप लोगों का समय बिना गवाए हुए, क्योंकि फिर क्वेश्चन आंसर का पार्ट मैं जरूर लेता हूं, क्योंकि वहीं से तो एग्जैक्ट पता चल के आता है कि आपको क्या चाहिए। तो हम स्क्रीन को शेयर करते हैं। हाँ सर, आपका लगता है म्यूट हो गया है, आप अनम्यूट कर लीजिए। बस अनम्यूट कर रहा हूँ, बस वो थोड़ा सा ना स्क्रीन शेयर में प्रॉब्लम चल रहा था। वो क्या, आजकल के ना बच्चों से मदद लेना पड़ता है ना, टेक्निकल एक्सपर्ट टीम से। मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल विजिबल है, यस। देखिए, मैंने आपको पहला जो सबसे पहला चीज बताया था ना, 864 को 864 क्यों बोला जाता है, मैं फिर से आपको बताता हूं। ये एक्चुअली ऐसा इसलिए बोला, वो हानगिल पार्क सर ने इस सिस्टम को बनाया कि 24 घंटा, मतलब हर सेकंड आपको किस तरह से इस बिजनेस को करना है ना, वो आपको चीज समझ में आएगा। और इसको एक तो मैंने टाइम से कैलकुलेट करके बताया, अब इसमें 8
अलग अलग जो चीजों का कॉम्बिनेशन, ये जो सिस्टम है, वो पहला सिस्टम क्या है, 8 स्टेप ऑफ सक्सेस। 8 स्टेप सक्सेस का क्या है पहला, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा 6 कोर एक्शन क्या है, क्या 6 कोर एक्शन के बगैर, कोर का मतलब क्या होता है, जो बेस में प्रेजेंट है, जिसके बगैर आप सफलता का कल्पना भी नहीं कर सकते। वो 6 कोर एक्शन बताऊंगा। 4 बिजनेस वैल्यूज बताऊंगा, क्या 4 बिजनेस वैल्यूज आपको ध्यान रखना है इस बिजनेस के दौरान, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहला हम चलते हैं 8 स्टेप टू सक्सेस में। सबसे पहला 864 में 8 स्टेप ऑफ सक्सेस में सबसे पहला काम जो है ना, वो है सेट गोल्स। एक्चुअली एक चीज समझिएगा, जैसे ही दिमाग में सेट गोल्स आता है ना, तो हम सोचने लगते हैं यार एटमी के बारे में हम किसी को क्या बताएं। कभी भी पहला ना सेट गोल्स में एटमी के बारे में नहीं गोल सेट करना है। आप गोल सेट करें कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। आपने अगर इस प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट किया, हर इंसान कुछ ना कुछ काम करता रहता है, काम करते हुए इस प्लेटफॉर्म को अगर वो सेलेक्ट कर रहा है तो क्या कारण है, किस कारण की वजह से वो सेलेक्ट कर रहा है। तो ना गोल सेट करना, क्या आपको क्या चाहिए इस बिजनेस से, वो सबसे जरूरी है। कहीं ना कहीं हम उसमें मिस कर जाते हैं। हम ना ये पहला पार्ट को मिस, 99% इस फर्स्ट पार्ट को लोग मिस कर जाते हैं, दूसरे पार्ट पे पहुंच जाते हैं। तो क्या होता है, जब आपने गोल सेट नहीं किया कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, तो आपका जीवन जो है ना गोल पोस्ट हो जाता है। कभी आप इधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी मन किया तो किए, कभी मन किया तो नहीं किए। आप डेडिकेटेड कब करेंगे, जब आपने सेट कर लिया गोल। और ये गोल कुछ भी हो सकता है, ये गोल इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। किसी का गोल हो सकता है बहन की शादी, किसी का गोल हो सकता है करियर में कुछ अच्छा अचीव करना हो, किसी का गोल हो सकता है बड़ा घर लेना हो, किसी का गोल हो सकता है बड़ी गाड़ी लेना हो, किसी का गोल फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है, किसी का गोल रिटायरमेंट हो सकता है, किसी का गोल घूमना फिरना, कुछ भी हो सकता है। ये आप और आपकी वाइफ या आपका फैमिली बैठ के इस गोल को सेट करें। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम है गोल को सेट करना। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आपने गोल सेट कर लिया ना, उसके बाद कमिटमेंट बहुत जरूरी है। आज आपने गोल सेट किया और कल कोई आया और आपको वो गोल पोस्ट बना दे, तो वो ना गोल ही नहीं है। फिर एक बार कमिटमेंट, वो सलमान खान की मूवी नहीं है, बोलता है ना, जब एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली ना तो मैं अपनी भी नहीं सुनता हूं। यानी एक बार आपने अगर एटमी में अपना गोल सेट कर लिया, क्यों आए एटमी में ये सेट कर लिया, फिर ना आप दुनिया की नहीं सुने। क्योंकि मैंने एक चीज देखा, दुनिया ना मतलब सिचुएशन के हिसाब से अपने थ्योरी को बदलती रहती है। तो वो कमिटमेंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिटमेंट क्या है, आपके ब्रेन का वो पार्ट है जो आपको किसी मुश्किल दौर में ना निकालेगा किसी सफलता के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कुछ एग्जांपल लेके मैं बताता हूं। सपोज करो अगर दशरथ मांझी कमिटमेंट नहीं सेट किए रहते, तो आप एक अंदाजा लगाओ, क्या वो 20 साल लगा के पहाड़ तोड़ देते। तो कमिटमेंट जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये कमिटमेंट जो है ना बाहर कोई नहीं करेगा। अगर आप कमिटमेंट खुद से नहीं करोगे तो दूसरा नहीं कर सकेगा। थर्ड जो इसका एक्शन है, वो एक्शन है लिस्ट बनाएं। जब आप लिस्ट बनाओगे ना, और एक चीज याद रखिएगा, जब आप लिस्ट बनाते हैं ना, तो लिस्ट में हम लोग सबसे पहले नाम लिखना शुरू करते हैं। आप लिस्ट बनाएं सबसे पहले, क्या आपको चाहिए इस बिजनेस से। लोगों का लिस्ट आप बनाइएगा बाद में, लेकिन पहले लिस्ट बनाइए कि आपको जीवन में क्या चाहिए। और ये लिस्ट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों फॉर्म में बनाइएगा। जब आप लिस्ट बनाएंगे ना, क्योंकि रीजन क्या है, आपने गोल सेट किया, आप कमिटेड भी हैं। अब आपने लिस्ट अगर बना लिया कि मुझे इस बिजनेस से ये चाहिए, मैं ये अचीव करूंगा, मैं शॉर्ट टर्म में ये अचीव करूंगा, लॉन्ग टर्म में ये अचीव करूंगा, मिड टर्म में ये अचीव करूंगा, तो क्या होगा कि आपको ना फिर वो जो मुश्किल सामने दिखेगा ना, वो कभी मुश्किल दिखेगा ही। अगला जो है वो है फोन कॉल। अगर आपने सपोज करो कि जब आपने लिस्ट बना लिया, और खुद का लिस्ट, अचीवमेंट के लिस्ट के बाद क्लाइंट का भी लिस्ट बनाइए। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी भी ना किसी को भी ये सोच के इस लिस्ट से बाहर मत करें कि ये नहीं करेगा। जानते हैं, लिस्ट में उसको पहले ऐड करें जो आपको लगता है नहीं करेगा, और उसको भी ऐड करें जो आपको लगता है करेगा। क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन करेगा। कई बार होता है ना, हम सोचते हैं अरे ये गोरा है ये कैसे करेगा, ये सांवला है ये कैसे करेगा, ये मोटा है ये कैसे करेगा, ये नाटा है ये कैसे करेगा। तो
प्लीज लिस्ट बनाने में कोई कंजूसी ना करें, जितने भी लोग हैं उनको लिस्ट जरूर बनाएं, लिस्ट में लिखे, क्योंकि कई बार आपको ना हैरानी होगी कि जब आप किसी को नहीं पूछेंगे और पता चलेगा वो तो इस बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहा है। फोन कॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक चीज हमेशा रखिएगा, ये फोन कॉल्स केवल और केवल अपॉइंटमेंट के लिए होना चाहिए। एक बहुत बड़ा ब्लंडर लोग यही करते हैं कि लोग सोचते हैं फोन पे ही सारा बिजनेस समझा देते हैं। अगर आप सोचो फोन पे ही अगर सारा बिजनेस समझ में आ जाता या समझाया जा सकता था, तो जो हमारे प्रधानमंत्री या दूसरी कंट्री के प्रेसिडेंट इंडिया आते हैं या हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर इंडिया से बाहर जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? फिर तो फोन पे ही सारा काम हो जाता है। एक्चुअली क्या है ना, हमारा जो ये बिजनेस है ना, हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन फोन है, क्योंकि हमें ना हमारा ये जो बिजनेस है वो हाई टच का बिजनेस है, हाई टेक का बिजनेस नहीं है। आप फोन कॉल करके केवल अपॉइंटमेंट ले, टाइम ले ले, बाकी बोले क्या है वो बोले आप मिल के बताते हैं, मिल के बैठ के बात करते हैं। क्यों? आपको ना जब आप मिल के बैठेंगे ना, तो आपको ना सामने वाले का व्यूज पता लगेगा, सामने वाले का देह भाषा पता लगेगा, बॉडी लैंग्वेज पता लगेगा, जिससे आपको पता लगेगा उनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या उनका इंटरेस्ट पार्ट है। तो आप प्लीज फोन कॉल से केवल और केवल अपॉइंटमेंट लें, उससे ज्यादा बिल्कुल मत कीजिएगा। नेक्स्ट है, अब आपने अपॉइंटमेंट लिया और आप पहुंच गए बिजनेस एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ बहुत ध्यान रखिएगा, कई बार ना बिजनेस एक्सप्लेन में क्या होता है, हम ना घर में पहुंचते हैं, पहुंचते स्टार्ट हो जाते हैं, ये है प्रोफाइल कंपनी का, ये है प्लान कंपनी का, फटाफट फटाफट, और वो बीच बीच में ना फोन पे सामने वाला फोन पे बात कर रहा है। कई बार बिजनेस प्लान ना दिखाना भी एक तरह से बिजनेस एक्सप्लेन करना है। अगर आप देख रहे हो सामने वाले का इंटरेस्ट नहीं है, या सामने वाला, जब भी आप किसी के साथ बैठे ना, तो आप क्या कीजिए, अपने फोन को म्यूट कर दीजिए और बोलिए सर थोड़ा सा ना, थोड़े टाइम के लिए आप भी अपने फोन को म्यूट कर दीजिए। अगर आप बोले नहीं आप बताइए, मैं ना फोन पे बात कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, आप बताइए। बोला नहीं सर कोई बात नहीं, आज लग रहा है कि आज आप बिजी हैं, कोई नहीं, हम किसी और दिन रखेंगे। और वो तुरंत ना लैपटॉप को बंद कर दे, टैब को बंद कर दे, और आप चाय पी के निकल ले वहां से। उस समय आपका बिजनेस प्लान ना एक्सप्लेन करना, बिजनेस प्लान एक्सप्लेन करने से ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। तो क्या ध्यान है, क्योंकि आप एक चीज समझे, आप ना अब सोचो, जब आप सर्च का बटन लगा रहे हो ना, पहला बटन अगर आपने गलत लगा दिया ना, तो पूरा बटन किसी भी कॉस्ट पे सही नहीं लगेगा। तो अगर पहला प्लान प्रेजेंटेशन ही आपने गलत तरीके से, सामने वाला फोन पे बिजी है और आप अगर बिजनेस प्लान एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो आपका बिजनेस प्लान कभी भी फ्रूटफुल नहीं होगा। तो इसीलिए बिजनेस प्लान कब एक्सप्लेन करें, किस टाइम एक्सप्लेन करें, ये भी बहुत जरूरी है, और किसको एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट, अगर आपने सपोज करो बिजनेस प्लान एक्सप्लेन कर दिया, समझा भी दिया, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ना, वो आता है फॉलो अप का। अगर आपने फॉलो अप नहीं किया, मान लो आपने बिजनेस प्लान दिखा दिया, सब कुछ समझा दिया, अगर आपने फॉलो अप नहीं किया, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एटमी का बिजनेस प्लान जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया कराया, उससे पहले 2 लोगों ने दिखाया, और दोनों लोगों ने अगर फॉलो अप लिया रहता ना, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं क्योंकि वो दोनों बिजनेस पार्टनर हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, अगर उन दोनों ने बिजनेस प्लान में फॉलो अप लिया रहता मेरा, तो मैं आज शायद उनके साथ एसोसिएट हो जाता। लेकिन फॉलो अप अगर आपका मिस्टेक होता है, 90% बिजनेस क्लोज होता है फॉलो अप पे। फॉलो अप आपका जो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बिना फॉलो अप के आपका कोई भी काम नहीं होता है। फॉलो अप के बाद आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है काउंसलिंग। देखें, और ये काउंसलिंग ना हर लेवल पे बहुत जरूरी है। जब आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तब जरूरी है, जब आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तब जरूरी है, जब आपका बिजनेस एकदम स्टक हो गया तब जरूरी है, आपके टीम के ग्रोथ के लिए जरूरी है, टीम के अंदर कोई भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो गया उसके लिए काउंसलिंग जरूरी है, हर चीज के लिए काउंसलिंग जरूरी है। और काउंसलिंग जो होता है ना, काउंसलिंग एक ऐसा पार्ट है, देखिए क्या होता है, आप समझिए, आपके टीम में कोई बंदा आया और वो बंदा आपको लगता है यार अप टू मार्क काम नहीं कर रहा है, आप उसको रिप्लेस करके दूसरे बंदे को लाओगे तो आपको उतना ही मेहनत करना होगा जितना उसके साथ आपने मेहनत किया, आप उसको तैयार किए, वो रेडी हो गया, बट कुछ पार्ट में अगर आपको लगता है वो सही से काम नहीं कर रहा है ना, काउंसलिंग से उसको कहीं ना कहीं हमें अप टू मार्क हम ला सकते हैं। काउंसलिंग हमारे बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और काउंसलिंग के बाद जो
चमत्कार होता है वो चमत्कार होता है डुप्लीकेशन से। डुप्लीकेशन इस बिजनेस में चमत्कार है। डुप्लीकेशन किस चीज का? डुप्लीकेशन जाने अनजाने हर चीज का होगा, आपके अच्छे चीजों का भी, आपके बुरे चीजों का, हर चीज का डुप्लीकेशन आपके इस बिजनेस में होगा। आप जो चाहते हो ना वो आप करो, क्योंकि जो आप चाहोगे और जो आप नहीं भी चाहोगे, जो आपका एक्शन है उसका डुप्लीकेशन होगा ही होगा। डुप्लीकेशन किस किस का होना चाहिए? जैसे सेट गोल्स का डुप्लीकेशन होना चाहिए। जैसे आप कमिटेड हो, लोगों को कमिटमेंट में लाओ। जैसे आप लिस्ट बनाते हो, लोगों को लिस्ट बनाना के लिए तैयार करो। जैसे आप फोन कॉल्स करते हो, लोगों को फोन कॉल्स करना सिखाओ। फिर जैसे आप फॉलो अप लेते हो, लोगों को फॉलो अप लेना सिखाओ, बिजनेस एक्सप्लेन करना सिखाओ। जैसे आप काउंसलिंग करते हो, उनको सिखाओ कि आप अपने टीम को जाके काउंसलिंग कैसे करो। क्योंकि रीजन क्या है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप सबका काउंसलिंग मैं कर दूं या मेरे टीम में आप हो तो आप कर दोगे। ये आपको ना डिवाइड करना होगा काम का। तो ये डुप्लीकेशन के साथ ही ये काम होता है। ये डुप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वापस मैं आपको बताता हूँ, पहला सेट करें गोल्स, दूसरा कमिटमेंट है, तीसरा लिस्ट बनाइए, चौथा फोन कॉल कीजिए, पांचवा बिजनेस प्लान एक्सप्लेन कीजिए, फॉलो अप कीजिए, काउंसलिंग और डुप्लीकेशन। ये 8 स्टेप है जो सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अब अगला आ जाता है 6 कोर एक्शन। जो 6 कोर एक्शन चाहिए, पहला है 100% प्रोडक्ट यूज। यहाँ पे ना कई बार हम लोग बहुत कंजूसी करते हैं। हमें लगता है यार हम प्रोडक्ट यूज क्यों करें, हम बेच लेंगे। देखिए आप एक चीज समझिए, अगर कोई आप प्रोडक्ट यूज करते हो घर में और एटमी वो प्रोडक्ट बनाती है, तो जैसे आप सपोज टूथपेस्ट तो हर आदमी करता है, तो टूथपेस्ट अगर आप यूज कर रहे हो और एटमी टूथपेस्ट बना रही है, तो आपके घर में आप हो सकता है 2 दिन ब्रश ना करो, ये पॉसिबल है, लेकिन आप दूसरे पेस्ट को बिल्कुल यूज मत करो। क्योंकि रीजन क्या है, उसका रीजन समझो। 100% प्रोडक्ट यूज अगर आप नहीं करोगे ना, तो आप लोगों को बता नहीं पाओगे कि प्रोडक्ट का क्या वैल्यू बेनिफिट है। लोगों को उस डेडिकेशन से आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। जब आप प्रोडक्ट यूज करोगे ना, तो आपके आवाज में एक खनक होगी कि आप उनको बताओगे कि इस प्रोडक्ट को यूज करो, देखो उसका क्या रिजल्ट है। जब आप यूज करोगे प्रोडक्ट को, तभी लोगों को आप गाइड कर पाओगे। तो पहला 100% प्रोडक्ट यूज। और जरूरी नहीं, मैं नहीं बोलूंगा कि आज ही आप ज्वाइन किए और जितने भी एटॉमी के प्रोडक्ट है वो सब खरीद के ले आओ, नहीं। आप धीरे धीरे जैसे आप जैसे ज्वाइन किए उस दिन आप अपना शैम्पू चेंज करो, पेस्ट चेंज कर लो, बॉडी लोशन, बॉडी शैम्पू चेंज कर लो। धीरे धीरे करके ना ओमेगा 3 यूज करो, कुछ और प्रोडक्ट यूज करो। धीरे धीरे आप जब प्रोडक्ट को यूज करोगे ना, तो आपको उसका रिजल्ट पता लगेगा। रिजल्ट पता लगने के साथ आप उसको लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो पहला जो 6 कोर स्टेप में है, सबसे पहला है प्रोडक्ट यूज। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं बार बार बोलता हूं और मैं बहुत दुख के साथ बोलता हूं कि बहुत सारे टीम मेंबर्स हमारे टीम में सोचते हैं क्या करना है सेमिनार में जाके, क्यों पैसा वेस्ट करना है। आज आपको लग रहा है पैसा वेस्ट करना, मैंने कोई ऐसा डायरेक्ट सेलिंग में लीडर नहीं देखा जो बिना सेमिनार गए हुए ग्रोथ करे। इसका रीजन समझिए। देखिए, 1-2 लोगों को अगर मैनेज करना हो तो आप भी मैनेज कर देंगे, लेकिन जब मैनेजमेंट हजारों लोगों का आएगा और जब मैनेजमेंट 10,000 लोगों का आएगा, जब मैनेजमेंट 1 लाख लोगों का आएगा, तो आप सोचो 1000 लोगों को आप फोन कॉल नहीं कर सकते हो। आपके टीम में अगर 1000 लोग हैं तो उनको हाई हेलो आप नहीं कर सकते हो, तो आप उसको 1000 लोगों को कैसे मैनेज करोगे। लेकिन अगर वो 1000 लोग, 10,000 लोग, लाख लोग, करोड़ों लोग अगर सिस्टम को फॉलो कर लिया, सिस्टम को फॉलो करने का मतलब सेमिनार अटेंड करें अपने टीम के साथ और गेस्ट के साथ, तो आप देखोगे वो पूरा एक ना सिनर्जी बन जाएगा जो आपके लिए ग्रोथ का कारण बनेगा। नेक्स्ट है स्टे अपडेटेड एवरी डे विद द कंपनी अपडेट। कंपनी का जो अपडेट है उसके साथ आपको हमेशा अपडेटेड रहना है, क्योंकि कंपनी का जो अपडेट होता है वो आपको पता रहेगा, तभी तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे लोगों को। शेयर एटलीस्ट 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी और प्रेजेंटेशन डेली। आप एक चीज समझो, जैसे अगर आप सपोज आप जॉब करते हो और आपके पास केवल संडे का टाइम है, तो आप रोज तो एक बिजनेस प्लान नहीं दिखा पा रहे हो, कोई बात नहीं। अगर आपके पास एक संडे का ही केवल डेट है, तो आप ये क्या करो कि आप हर संडे ना 10 बिजनेस प्लान दिखाओ, या हर संडे सपोज आपको पूरे महीने में 30 प्लान दिखाना है, 4 वीक है तो उसको डिवाइड कर लो कि मुझे 8-10 लोगों को बिजनेस प्लान हर संडे दिखाना है। संडे सुबह से लेकर रात तक आप एकदम फुल टू बिजी रहो। और आप जब हर संडे उस तरह का करोगे, जो हर रोज एक दिखाना चाहिए नहीं दिखा पा रहे हो, वीक में 1 दिन दिखा रहे हो या वीक में 2 दिन है,
तो उसके हिसाब से उसको आप डिवाइड कर लो, लेकिन एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जरूर चाहिए डेली, ताकि इससे क्या होगा, पर मंथ 15 लोग लेफ्ट और 15 लोग राइट आपके टीम में आना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा, केवल ना बिजनेस अपॉर्चुनिटी से नहीं होगा, आपको कंज्यूमर भी खड़े करने होंगे। और हमारे यहाँ क्या होता है, कंज्यूमर से ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी वाले लोग, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, वो क्रिएट हो जाते हैं। तो आपको रोज क्या करना है, 2 कंज्यूमर एवरीडे क्रिएट करो और इसको रोज करो। अब इसमें क्या है, इसमें अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप जब मेट्रो में ट्रेवल करके जा रहे हो, अपने ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करके जा रहे हो, या ऑफिस जा रहे हो, या ऑफिस से लौट रहे हो, तो कहीं ना कहीं 2 कंज्यूमर हमेशा क्रिएट करें। और आपको एक चीज बताऊं, आपके मसल को सबसे ज्यादा जो बिल्ड करेगा वो कंज्यूमर बिल्ड करेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, किसी को भी प्रोडक्ट को बेचना, कंज्यूमर के पास जाके उसको बताना प्रोडक्ट के बारे में, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप एक चीज समझो, जब आप रोज 2 कंज्यूमर क्रिएट करोगे ना, उनमें से एक बंदा आ जाएगा जो बोलेगा मुझे बिजनेस करना है। तो ये आपका ना एक रॉ मटेरियल तैयार हो रहा है, जिससे आप बहुत बड़ा काम क्रिएट कर सकते हो, बहुत बड़ा लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारे लोग आ सकते हैं आपके पास। अब चूंकि माइंडसेट बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, इसीलिए आपको रेगुलरली ना कुछ रिकमेंडेड बुक जो है उसको पढ़ना है, कुछ रिकमेंडेड वीडियो को आधा घंटा रोज देखो, प्रोडक्ट का वीडियो हो, कंपनी के वानगिल पार्क सर का वीडियो हो, वो अब जो लोग नए हैं खास करके उनको भी बोल रहा हूँ, या जिन लोगों का बिजनेस स्टक हो गया, आप आज जाओ और आज रात से एक वानगिल पार्क सर का वीडियो 25-30 मिनट का होता है, एक आप देख के रात में सो, आपका बिजनेस जहां स्टक है ना और क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वो सारा सॉल्यूशन वो वीडियो दे देगा। यानी आप एक ना अपना वो मतलब एक अपना रूल बना लो कि बिना वानगिल पार्क सर का एक वीडियो देखे, इंग्लिश या हिंदी जो आपको पसंद तो उसमें देखे, आप कभी मत सो। जब आप देखोगे ना, तो आपका जो दिन का जो चैलेंज बिजनेस का, जो पूरी प्रॉब्लम है बिजनेस का, उस वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो, अलग अलग वीडियो डेली देखो एक। अब ये हो गया आपका 8 स्टेप, क्या होगा, 6 कोर एक्शन क्या करना। अब 4 वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 बिजनेस का मतलब है, कभी भी नेगेटिव टॉक मत करो, अपलाइन के बारे में, कंपनी के बारे में, ना डाउनलाइन के बारे में, छोड़ दो। और उसके बाद क्या होता है, जैसे कई बार ना आपके साथ चैलेंज है ना, चैलेंज में सीधा बात, एक चीज आपको किसी से भी बहुत अच्छा संबंध नहीं बन रहा है, आप ना साइड हट जाओ। आप इस बिजनेस में ना आपका बहुत ज्यादा ना कहते हैं ना राइवलरी नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं सब लोगों के साथ आपकी निभेगी, कोई बात नहीं, जिससे निभ रही है और अच्छा काम करो, नहीं रही है लेट इट गो, छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। क्योंकि यहाँ हजारों लोग आपकी टीम में आएंगे और हजारों लोगों के साथ जरूरी नहीं आपका मतलब का जो कनेक्शन है वो प्रॉपर रहेगा, लेकिन जिनके साथ प्रॉपर रहे उनको प्रॉपर कर लो। प्लस कोशिश करो जितना कम से कम रिफ्ट हो आपके टीम में, उतना आपका ग्रोथ होगा। नेक्स्ट है नेवर ईगो। और याद रखो ये बिजनेस का चीज के लिए पैसा या और ऑर्डर लगाया, आप समझ लो आपका बनाया बिजनेस ना एक झटके में चला जाएगा। यहाँ पे नेवर प्ले विथ ईगो मनी के साथ में और बोलूंगा स्पाउस भी। किसी के ना, हम लोग जिस बिजनेस में है ना, इस बिजनेस में हम घर के बिजनेस करते हैं, तो जब हम घर में बिजनेस करते हैं ना, वहां अगर किसी कारण से हमारा कैरेक्टर और क्रिएटिविटी का एक चीज है तार से फ्लो होता है, अगर किसी कारण से आपका कैरेक्टर डाउट में आ गया ना, तो लोगों के घर हो जाएगी और आपका बिजनेस सफर कर जाएगा। तो इसका ध्यान रखिए आप कि किसी के ईगो से, किसी के मनी से, किसी के स्पाउस से कभी भी इन्वॉल्व ना हो। विद अपलाइन एंड डाउनलाइन, रोज आपका कॉल आपके अपलाइन से अपलाइन पर मिलकर काम करो, रोज बात होना चाहिए, होना आपके डाउन कम्युनिकेट
आपके अपलाइन लाइन के साथ रहेगा ना, तो आपका बिजनेस कंट्रोल में रहेगा। अब क्या होता है, आप ये नया मैटर करके देखता हूँ आप या कंपनी से, बिफोर डूइंग एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जब भी आपको लगे ना, जैसे आपका मन करे कि यार यहाँ कुछ पार्टी दे देते हैं और अब ज्वाइनिंग आ जाएगा, आप ना अपने अपलाइन से पूछो या कंपनी से पूछो, पता है क्या है, आपका जो अपलाइन है या आपकी जो कंपनी है उनको पता होगा, उसने वो काम कर रखा है। अब वही काम अगर बार बार आप भी करोगे और अपने समय को, अपने मनी को, अपने रिसोर्सेज को डैमेज करोगे, तो क्या होता है ना, आप बहुत सारा ये हर गलती तो दूसरे के गलती, दूसरा जो आपका अपलाइन है ना, जो भी या जो भी आज आपको लग रहा है कि कर देखिए, आपका अपलाइन वो करके देखा होगा, आप भी अपलाइन बनोगे किसी के, बहुत सारा, तो अगर क्लाइंट आपका जो टीम मेंबर्स है वो अगर आपसे पूछ लिया, तो उसका एनर्जी, उसका रिसोर्सेज, उसका टाइम सब आप सेव करोगे। इसको ध्यान रखना है आपको। 4 चीज बताया मैंने, पहला टॉक नहीं करना किसी के साथ, ना इनके साथ, ना कंपनी के साथ, ना डाउनलाइन के साथ। दूसरा, किसी का ईगो, मनी और स्पाउस के रेगुलर कम्युनिकेशन है, अपलाइन कंसल्ट करें आपके अपलाइन को या कंपनी के बारे में। तो आप जब अपलाइन से और कंपनी से पूछोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि ये रिजल्ट नहीं देगा। दैट इज फ्रॉम द माय साइड। आप लोग क्वेश्चन है उसको जरूर देते हैं, प्लीज अनम्यूट करें, हैंड रेज और के रिलेटेड। और एक चीज मैं बताऊं, ये जो 864 का जो हमारा सिस्टम है ना, इसको हर टाइम इंटरवल पे ना, हर आदमी को, चाहे मैं हूं, मेरे अपलाइन है या मेरे डाउनलाइन है, हर एक को 864 को ना बीच बीच में ना रिवाइज करना चाहिए। वो आपको बैक टू बेसिक लाएगा। जब आप बैक टू बेसिक आओगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको आपका रीजन समझ में आएगा कि आपका बिजनेस कहाँ स्टक है, कहाँ पे आप ना सही से काम नहीं कर पा रहे हो, या कहाँ क्या चैलेंज आ रहा है, सब कुछ आपको पता लगेगा। प्लीज अनम्यूट करें या हैंड रेज करें किन्हीं का अगर कोई क्वेश्चन है तो, या कुछ ऐड ऑन करना है अगर आपको लगता है। मैं चाहूंगा कुछ लोगों को मैं जैसे देख पा रहा हूं, प्लीज पहले हैंड रेज करें किसी का कोई क्वेश्चन है तो। देखिए, 2 चीज है, या तो ऑल क्लियर है या प्लीज पूछें, हैंड रेज करें तो मैं अनम्यूट कर दूं, करने का ऑप्शन दूंगा तो आप अनम्यूट कर, क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम अनम्यूट का ऑप्शन होल्ड हटाते हैं ना, तो कई बार डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाता है। चलो मैं कोशिश करता हूँ अनम्यूट का ऑप्शन हटा के आप थोड़ा सा, हाँ प्लीज पूछे, हैंड रेज करें। सर, वीक में 1 या 2 बार प्लान प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। देखें, हमारा ना हर वीक वेडनेसडे को इनफैक्ट प्लान प्रेजेंटेशन होता है, अगर मैं बात करूं ना, इसीलिए हमने जल्दबाजी में ना आज रखा है, क्योंकि कल जो है ना हमारा प्लान प्रेजेंटेशन का डेट है। तो हर ट्यूसडे यही लिंक रहेगा, जिस लिंक पे आप कनेक्ट कर रहे हो, हम लोग हर ट्यूसडे प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं। अब इसमें क्या है ना, इसमें एक चीज और करना है, इसमें ना आप लोगों को भी वॉलंटियर करना है कि हमेशा हर थर्सडे ना, हर ट्यूसडे, वेडनेसडे केवल जैसा प्लान ना दिखाए या मैं ना दिखाऊं या कोई संतोष सर या जो भी स्पीकर है, कोशिश करें हर लोगों को ना प्लान प्रेजेंटेशन दिखाना आना चाहिए। तो उसमें आप पार्टिसिपेट करें, उससे ना आपका बिजनेस और ग्रो करेगा। ये होता है मोहन जी, बिल्कुल सही, ये ऑलरेडी हम लोग ना इस पे ध्यान कर रहे हैं। निधि राणा टू एवरीवन, सर प्लान बताने में प्रॉब्लम आती है तो कैसे करें? हाँ, बहुत सिंपल, आप ना जाके ना YouTube पे जाओ और मेरा नाम लिखना, राजेश झा एटमी। आपको ना प्लान प्रेजेंटेशन 2-3 फॉर्म में है, और भी बहुत सारे लीडर का हिंदी में दिया हुआ है, उसको ना कान में लगा के आप 10 बार सुनो।
आप देखो अपने आप आपको याद हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है ना, बार बार मीटिंग के बाद, मतलब बार बार जब आप करोगे ना, बार जब आप सुनोगे, आपको क्या लगता है, मेरे को जो प्लान प्रेजेंटेशन बता पाता हूँ या जैसर बता पाते हैं या कोई भी स्पीकर बता पाता है, वो कई बार इनको बता चुका है, तभी वो बता पा रहा है। रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए बिल्कुल। राइटिंग में देखिए, राइटिंग में तो पॉसिबल नहीं है, आप मतलब पीपीटी के फॉर्म में वीडियो सुन के प्लान प्रेजेंटेशन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या अपलाइन को साथ ले जा सकते हैं? देखिए बिल्कुल ले जा सकते हैं। जब आपका प्लान प्रेजेंटेशन है तो आप अपलाइन को साथ ले जा सकते हैं, लेकिन एक चीज समझिएगा, क्या होता है ना, अगर आप इस बिजनेस में 3 महीने से ज्यादा अपलाइन के साथ रहे ना, तो ये आपका बिजनेस कभी भी आपका नहीं, ये आपका बिजनेस फिर आपके अपलाइन का हो जाएगा। एक्चुअली नो डाउट आपके पास अपलाइन है जिसको आप सपोर्ट करके ले जा सकते हैं। आप सोचो, कोई एक डॉक्टर आया और वो अपना एक अपलाइन डॉक्टर लेके आया, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, उस डॉक्टर से ट्रीटमेंट आप लोगे? आप सबके लिए मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली कोई सपोज करो कोई डॉक्टर आया, उसके साथ एक और डॉक्टर आया, वो बता रहा है कि ये लिखो, तो आप एक चीज बताओ, वो पर्ची आप लिखवा लोगे, लेकिन बाहर निकल के ना पर्ची फाड़ के फेंक दोगे, बोलोगे अरे भैया ये तो मेरे ही ऊपर ही अस्त्रा तेज कर रहा है, भाई माफ करो ऐसे से। उसी तरह से जब तक, और रीजन समझना, जब तक आप इंडिपेंडेंट होके मार्केट में नहीं जाओगे ना, मुझे पता है क्या लगा, इस कंपनी में नहीं, इससे पहले कंपनी में मैंने ना एक ही प्लान दिखाया था अपने अपलाइन के साथ जाके, और संजोगों से उसमें ना क्लोजिंग नहीं आया। तो मैंने उनसे पूछा, अरे सर आपका भी क्लोजिंग नहीं आता है क्या? बोले नहीं आता है, कई बार ऐसा होता है। बोला जब आपका भी नहीं आता है तो तब तो मैं भी दिखाई दूंगा। तो यानी आप एक चीज समझो, जहां पे क्लोजिंग आएगा ना, वहां आप जाओगे तो क्लोजिंग आएगा। अगर आपसे नहीं आया ना, तो ये जरूरी नहीं है कि मैं जाऊंगा तो क्लोजिंग आ ही जाएगा। चांसेस है, धीरे धीरे आपको कुछ स्टेप सीखने होंगे। जो इस तरह का जो ट्रेनिंग हम लोग रखते हैं, उसका पर्पस ही यही है कि हम आपको प्रॉपरली सिखा पाए, ताकि आप अगले को बता पाओ। संतोष सर आप अनम्यूट करें। संतोष कुमार जी हैं रांची से, आई थिंक, मुझे लगता है यही है, रांची से हैं शायद, और ये मुझे ट्रेन में मिले थे। मैं चाहूंगा कि संतोष जी आप हैंड रेज करें, रांची से जो है, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ, और अगर ये वही है, मतलब मुझे लगता है कि वही होंगे। संतोष जी मैंने आपको ना को-होस्ट बनाया, आप अनम्यूट करें तो प्लीज थोड़ा सा ना एक डेमो पार्ट देखेंगे। मुझे सर बोल रहे हैं क्या? अच्छा सॉरी, मुझे लगा कि वो है संतोष जी हैं। अच्छा मैं भी और हाँ सही, मुझे लगा तो वो आए हैं। क्योंकि मुझे ना क्यों रीजन क्या था कि आपको क्यों अनम्यूट कराए, क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, कई बार हम लोग ना बस में, ट्रेन में, मेट्रो में चुपचाप ना जाते हैं और चले आते हैं, हम लोग ना जिक्र नहीं करते हैं। अगर एक ऐड आप लोगों ने देखा होगा जिसमें बोलते हैं ना, बात तो करके देखो, अगर जब आप बात करोगे ना तो बात बन जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू, मैं कंफ्यूज हो गया था। कोई और भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछें। नीरज सर कुछ ऐड करना है क्या, या जैसा कुछ ऐड करना चाहे तो? तो वो है 2021 करके। हाँ सर, अब आप अनम्यूट करें प्लीज, आपने गलती से ना आपका, हाँ संतोष साहब प्लीज, सब आप समझ गया सर, अनम्यूट करें, क्योंकि आपका कैमरा ऑन हुआ तो मैंने देख लिया आपको, प्लीज। चलिए, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अब आप एक चीज देखो, मैं सिक्स सेंस को कितना मानता हूँ कि मतलब आपका वो बाय मिस्टेक वो नाम नहीं लिखा हुआ था, लेकिन सर आप जरा अपना कहानी बताएंगे, हम लोग कैसे मिले? नहीं, मैं दिल्ली से अभी ट्रेन से आ रहा था तो इनकी बातें मैं फोन पे सुन रहा था, मुझे लगा कि इनको इंटरप्ट करना चाहिए, तो मैं बात की। ऑलरेडी मैं भी मार्केटिंग
मैं लंबे समय तक इंडस्ट्री में रहा हूँ। बातचीत किया, ये तो बात सही इन्होंने बोला कि बात करना चाहिए। अगर आप में कुछ क्यूरियोसिटी है कुछ जानने का, तो बेझिझक आप इंटरेक्ट कर सकते हैं किसी से भी। इनकी कुछ बातें मुझे अच्छी लगी, तो मैं इनके साथ इनके कहे अनुसार मैं नेक्स्ट डे पार्टिसिपेट भी किया। कुछ हमारा भी अपना सेल्फ इंटरेस्ट रहा कि मैंने अपना इंडस्ट्री में तो 30 साल का समय दिया, अभी भी दे रहा हूँ, लेकिन लगा कि नहीं, इसके बारे में जानना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी, इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत सारी कंपनी है। ये कंपनी भी मेरे को थोड़ा इम्प्रेसिव, इसका सारा प्रोफाइल लगा, दैट्स व्हाई आई थैंक यू सर, थैंक यू। और मुझे अच्छा ये लगा कि देखिए क्या होता है ना, दो चीज़ समझिएगा। अगर आप ये चाहते हैं ना कि एक अनजान आदमी आपका अपना हो जाए, तो मैं उसका एक ना सूत्र बताता हूँ। पहला सूत्र, किसी अनजान आदमी से बात करिएगा तो कोई भी ना अपने अंदर ना कुछ भी स्वार्थ मत रखिएगा, कुछ भी स्वार्थ नहीं रखिएगा। पहला, अगर आप स्वार्थ रख के बात करेंगे तो आप कर ही नहीं पाएंगे, कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। पहला। दूसरा क्या है ना, उनके हित के बारे में सोचिए कि भाई हम उनका क्या हित कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से क्या हित कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से क्या हित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये बिजनेस बहुत खूबसूरत है। थैंक यू संतोष सर, थैंक यू। और मैं चाहूँगा नीरज वाधवा सर, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज़ अनम्यूट करें, क्योंकि आपका भी मकसद जो है ना हेल्थ के साथ ना बिजनेस में बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो प्लीज़ अनम्यूट करें। या संतोष राय जी प्लीज़ आप अनम्यूट कर रहे हैं, चाहे कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज़ ऐड करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मुझे ये आश्चर्य हो रहा है देख करके कि इतने बेहतरीन सेशन के बाद लोग, लगता है या तो ज़्यादा ही ठंड लग गई है लोगों को, या सेशन के बाद जो गर्माहट आई है ना उससे वो उभर नहीं पा रहे हैं। और आपकी जो चमक है ना सर, ये बता रहा है लोगों को कि भाई अगर प्रोडक्ट यूज करोगे ना, यूजर बनोगे ना, तो मेरी तरह चमकोगे, नहीं तो फिर वैसे ही रहोगे। कि ये जो मेरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, वो ये प्रोडक्ट अपने आप में दिखाता है कि हमारे प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट मतलब एक होता है कि हम प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, एक होता है प्रोडक्ट बोलते हैं। कल हम लोग ओम सर को देख रहे थे, गजब का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अभी आपको जो भी देख लेगा, जो पहले से आपको देखा हुआ है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर वो देख लिया ना तो वो शॉक्ड हो जाएगा, अरे सर ऐसा क्या हो रहा है। तो वो जादू बिल्कुल होता है। और ये आपने बिल्कुल सही बोला, चाहे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे इंपीरियल मास्टर हो, इसने जड़ छोड़ दिया, वो गिर जाएगा ऑन देम। तो कोई भी हो, ये 864 जो है ना, ये बेसिक्स है, हम सभी के लिए बेसिक्स है। और अगर इसको कोई भी फॉलो नहीं करेगा तो वो फॉलो करवा भी नहीं पाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है इसको फॉलो करना। आप किसी भी लेवल पे है, डजंट मैटर, हर हालत में आपको 864 को फॉलो करना है, तभी आपकी टीम में लोग फॉलो करेंगे। और जब ये फॉलो करेंगे तो कहीं भी जो फ्लो है बिजनेस का वो स्टक नहीं होगा, वो प्रॉपर वे में चलता रहेगा। तो मैं कुछ भी नहीं ऐड ऑन करना चाहूंगा। जबरदस्त सेशन है, जिन लोगों को समझ में आ गया बहुत अच्छा, नहीं समझ में नहीं आया दोबारा आप 864 जाओ, स्टडी करो। और अगर आपने रिकॉर्डिंग किया होगा तो ये रिकॉर्डिंग को भी शेयर कर देना कि अगर किसी कारणवश अगर आप कहीं पे थे, नहीं अटेंड कर पाए, तो सबसे पहले 864 आप जाओ, 2 बार सुनो, फिर मुझसे बात करो। कोई भी लीडर अगर बात करता है कि सर हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, उससे सबसे पहला सवाल यही करना है कि 864 का सेशन आपने देखा, नहीं देखा, पहले सेशन देख करके आओ, फिर बात करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एकदम सर, एकदम धन्यवाद, धन्यवाद। मैं चाहूँगा हमारे बीच में ना कुछ मतलब नीरज तिवारी जी भी हैं, प्लीज़ नीरज तिवारी सर आप भी प्लीज़ अनम्यूट करें, और थोड़ा सा कि आप हमारे स्पॉन्सर आईडी हैं, हाँ प्लीज़। एक्चुअली थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब करना चाहूँगा अभी। अरे सर प्लीज पूछिए, मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। नहीं, बेसिकली है क्या, एक जो है ना हेयर फॉल हो रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया है। क्या उसका जो है कुछ हो सकता है, क्योंकि एज जो है ना अभी 33 के आसपास है,
देखिए हेयर फॉल के केस में ना आप हमेशा याद रखिएगा, लिवर को ताकत देना है। लिवर को 4 चीज ताकत देता है, विटामिन डी, B12, ओमेगा 3 और मिनरल्स। यानी उनको स्पिरुलिना पाउडर और ओमेगा 3 का सेवन कराएं, हमारा जो हेयर टॉनिक है वो यूज कराएं, रिजल्ट फिर आपको खुद ही दिख जाएगा। बिल्कुल। लेकिन साफ हो गया ना खत्म, थोड़ा सा एक आध दो ऐसा दिख अच्छा, रहा एक है प्रोडक्ट तो है। एक प्रोडक्ट आ रहा है, अभी एमडी सर बता रहे थे, एक प्रोडक्ट आ रहा है ऐसे लोगों का जिनका साफ हो गया दोबारा से आने के लिए। तो थोड़ा सा पेशेंस रखे, वो साफ वाले को दोबारा से लाने का भी जुगाड़ चल रहा है। सॉरी। अच्छा, अभी जो थोड़ा सा है ग्रोथ हो सकता है क्या? एक बार हेयर टॉनिक बिल्कुल सर, अभी हाँ बिल्कुल सर, अभी इनको हेयर टॉनिक दे दीजिए और जो मार्केट का शैम्पू के साथ देना ठीक रहेगा। यूज कर रहे होंगे तो उसको रोक देना है। मार्केट का कोई भी ऑयल वगैरह यूज कर रहे होंगे उसको रोक देना है, क्योंकि उसमें केमिकल होता है, वो हमारे पीएच लेवल को पूरा बिगाड़ के रख देता है। तो सबसे पहले हमारा स्कल्प का जो पीएच लेवल है उसको मेंटेन करना है। इसके लिए हमारे पास में स्कल्प केयर का सेट आता है, जिसमें शैम्पू एंड कंडीशनर दोनों होता है और अपना हेयर टॉनिक, इसको अभी अप्लाई करना है। एंड होपफुली उनका धीरे धीरे करके जो हेयर ग्रोथ है वो स्टार्ट होगा दोबारा से, क्योंकि जो पोर्स क्लोज हो चुके हैं ना वो दोबारा से पोर्स ओपन होने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, तो जो मतलब जो साइड में कुछ बचे हुए हैं और ऊपर तो साफ ऐसे ही हुए हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि उसमें ग्रोथ ही नहीं है बाल। दो चीजें होती हैं, क्या होता है, एक तो होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिसको हमने देखा है कि भाई पहले था अब गया है, तो दोबारा हम वहाँ खाद पानी डाल करके वहाँ पे उगा सकते हैं। तो वो जो लेयर हमारा होता है वो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि बंद हो गया है। हमारा जिस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है ना वो दोबारा से पोर्स को ओपन कर देगा, तो चांसेस हैं। नहीं, जो मतलब दादा परदादा से चलता हुआ आया है उसका क्या? उसका कुछ नहीं कर सकते आप। एक बार हेयर टॉनिक यूज करके देख लें, एक बार हेयर टॉनिक यूज करके देख लें कि कहीं अगर समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कोई नहीं, एक बार ट्राई कोई करता हूँ। बुराई थोड़ी है। आप झारखंड में कहाँ से हैं संतोष जी? क्योंकि मैं भी बेगूसराय से हूँ। मैं भी झारखंड से हूँ। कहाँ से? बिहार, बेगूसराय। ओके, बेगूसराय से। ओके ओके ओके। क्योंकि बेगूसराय से हमारे सर हैं लक्ष्मण प्रसाद सिंह, झारखंड के रिटायर्ड आईजी सर हैं और मेरे फैमिली मेंबर हैं। ओके, हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, आपसे तो मैं मिला हूँ काफी बार सर। लग तो रहा है तो मैं आपसे तो मैं मिला हूँ लगभग 2023 साल के आसपास जो मैं मिला हूँ ना, लगभग 11 बजे रात को आपके घर पे ही। पूरा याद है इनको डिटेल। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। बिल्कुल। अब मैं चाहूंगा नीरज तिवारी सर आप भी कुछ ऐड ऑन करें तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स शाह जी, आप लगातार कल भी सेशन में अपना रहे और फिर आज भी, और ये जिम्मेदारी एक लीडर के रूप में आप बहुत बढ़िया निभा रहे हैं और हम लोगों को बट ऑब्वियस है डुप्लीकेशन की ज़रूरत है। और संतोष जी हैं, जय हैं, मैं भी लेना चाहूँगा, बाद में लूँगा जो सेशन लेने हैं। ये है कि जो हम लोगों की टीम में जो लोग भी अटेंड कर रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि कई बार कई लोगों को लगता है कि 9 बजे का सेशन हम लोगों का इतने फ्रिक्वेंटली हो रहा है या इतनी जल्दी हो रहा है। एक्चुअली समझिएगा कि हम लोगों के लिए कोई और मोटिवेशन फैक्टर होता नहीं है। ये जो सेशंस लिए जाते हैं ये हमारे सिस्टम का एक हिस्सा है और टाइम टू टाइम ये सेशंस कभी रितेश रंगारी जी भी लेंगे और भी कई सीनियर लीडर्स ले सकते हैं। ग्रुप सेशंस भी होते हैं तो उनको आप लोग प्रॉपर्ली अटेंड करें, बस ये रिक्वेस्ट रहेगी। ये हम लोगों के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू। अब मैं चाहूंगा ना, हमारे बीच में एक मनीषा मैम है, ये सबसे पहले आ गई थी जूम सेशन जब हमने ऑन किया था, तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ, और वो चूंकि ये नई है तो आज जो मैंने 864 समझाया मनीषा मैम, उसमें क्या अच्छा लगा आपको? मनीषा मैम प्लीज, मनीषा चावला मैम प्लीज अनम्यूट करें। जी सर। हाँ मैम नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ मैम, 864 में मैम क्या अच्छा लगा?
क्या अच्छा लगा सर। फ्रैंकली बोलूं तो मुझे उतना कुछ समझ नहीं आया। मुझे इस सेशन का आप रिकॉर्डिंग भेजेंगे फिर देखना है तब, ताकि मुझे कुछ समझ में भी आए। ये हुई ना सबसे बेस्ट पार्ट, ये आपने बताया, इसीलिए तो मैं नए लोगों से, और ये क्या करूंगा, बहुत छोटे टाइम में ये सेशन